A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your political science teacher. So, class, today we all are going to continue our chapter number 8, local government of your book, Indian Constitution at Work. And today we all are going to study about the 74th Amendment and the implementation of 73rd and 74th Amendments. In our previous class, we have elaborately discussed about the 73rd Amendment and different organizations under 73rd Amendment. Okay, how they work, uh, how election held, how state finance commissions do their work, etc. We have seen all these things. Okay, now our today's topic is 74th Amendment and implementation of 74th and 73rd and 74th Amendments. So as you all know, we already discussed about this. The 73rd Amendment is related to or dealt with rural local bodies, and 74th Amendment dealt with urban local bodies, or you can say Nagar Palikas. 74th Amendment जो है किससे डेल्ट करता है, उस 74th Amendment में क्या क्या चीजें मेंशन की रखी है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन डाला गया, इट ऑल अबाउट अर्बन लोकल बॉडीज और नगर पालिकास. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज एन अर्बन एरिया? एक अर्बन एरिया होता क्या है? हम कैसे डिसाइड करेंगे कि एक पर्टिकुलर एरिया जो है अर्बन एरिया है? So we will decide about an area that particular area is a rural area or an urban area according to the census. So if we look at the census of India, ठीक है, सेंसस क्या होता है? मतलब हर 10 साल में आपका सेंसस होता है. सेंसस if I say in the lamest language, it means the counting of the population. Okay, तो इसमें काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन, लिटरेसी, इलिटरेसी रेट, ठीक है, कितनी डेथ रेट्स हुई है, कितने इन्फेंट्स जो है पैदा हुए हैं, कितने इन्फेंट्स की डेथ हुई है, ये सारी चीजें, बहुत और भी दूसरी चीजें हैं, वो सब आपके सेंसस में पता चलता है. क्या ऑक्यूपेशन है, कौन से कितने परसेंट पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में है, सेकेंडरी सेक्टर में, टर्शियरी सेक्टर में, ये सब हमें सेंसस से पता चलता है. सो जो सेंसस है, द सेंसस ऑफ इंडिया डिफाइंस एन अर्बन एरिया एज हैविंग मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 5000. एक जो अर्बन एरिया है वहां की मिनिमम पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? 5000 पर्सन्स, 5000 की होनी चाहिए. एंड उस 5000 में एटलीस्ट जो 5000 है, 75% पॉपुलेशन, स्पेशली मेल वर्किंग पॉपुलेशन जो है, वो इंगेज होनी चाहिए नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन में. ठीक है, ये फर्स्ट हमारा जो क्या है अर्बन एरिया का होने का एक आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या है, एक आइडेंटिफिकेशन पॉइंट क्या है? मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 5000. ठीक है. सेकेंडली, 75% मेल वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज इन नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, कि एटलीस्ट 75% जो पॉपुलेशन है वो नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन में इंगेज हो. एंड द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट 400 persons पर स्क्वायर किलोमीटर. डेंसिटी मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में एटलीस्ट जो है 400 persons जो है वो रहते हो. ठीक है, ये डेंसिटी होनी चाहिए. Okay, so this is the criteria through which you can decide what is an urban area. Okay, and if we talk about 2011 census of 2011, about 31% of India's population lives in urban area. 31% जो इंडिया की पॉपुलेशन है कहाँ रहती है? अर्बन एरिया में रहती है. कहाँ रहती है? अर्बन एरिया में. So what is the criteria of identifying an urban area? Minimum population of 5000. At least 75% of population engaged, especially male working population, engaged in non-agricultural occupation. And the third criteria is density of population of at least 400 persons per square kilometer. 400 persons जो है, एटलीस्ट 400 persons per square kilometer में रहते हो, ये आपकी डेंसिटी होती है. ओके, and as per the 2011 census, about 31% of India's population lives in urban area. Okay, now
Okay, so now if we differentiate between 73rd and 74th amendment, like in many ways the 74th amendment is a repetition of the 73rd amendment, except that it applies to urban areas. Whatever we have studied under the 73rd amendment about the reservations, about the state election commissioners or state finance commissions, transfer of subjects, etc. ओके ये सारी चीजें जो हैं आपकी ऑलमोस्ट 74th अमेंडमेंट में भी है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है कि ये अर्बन एरियाज में अप्लाई होती है और वो रूरल एरियाज में अप्लाई होती है, ठीक है। All the provisions of the 73rd amendment relating to direct elections, reservations, transfer of subjects, state election commission, state finance commission are incorporated in the 74th amendment also and thus apply to nagar palikas. Like 73rd amendment में हम क्या बोलते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। और 74th अमेंडमेंट में जो अर्बन एरियाज हैं उनको हमने क्या नेम दे रखा है, नगर पालिका का नेम दे रखा है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो mandated the transfer of a list of functions from state government to the urban local government। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी हमने 29 सब्जेक्ट्स ट्रांसफर्स की बात की थी हमारी लास्ट क्लास में, तो सेम इट अप्लाइज टू द अर्बन लोकल बॉडीज ऑल्सो, ठीक है। कि स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट कौन से 29 सब्जेक्ट से रिलेटेड जो जितनी भी लिस्ट है वो ट्रांसफर कर सकती है अर्बन लोकल बॉडीज को। ओके, सो these functions have been listed in the 12th schedule of the constitution। ये जितना भी आपका जितने भी functions हैं किसमें मेंशन किए गए हैं, 12th schedule of the constitution में ये मेंशन किए गए हैं। So now our next topic is implementation of 73rd and 74th amendments। Implementation of 73rd and 74th amendment। Yes, जो मैंने आपको एक बात बताई थी अपनी लास्ट स्लाइड में कि 12th शेड्यूल में मेंशन किया गया है, तो आपका पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उसके बारे में 11th शेड्यूल में दिया गया है और जो 74th अमेंडमेंट है उसके बारे में 12th शेड्यूल में दे रखा है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, आपके बुक में जो है 11th शेड्यूल लिखा हुआ है, तो डोंट कंफ्यूज इट। 73rd अमेंडमेंट 11th शेड्यूल में मेंशन किया गया है और 74th अमेंडमेंट जो है आपका 12th शेड्यूल में मेंशन किया गया है, ठीक है। सो नाउ आवर टॉपिक इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 73rd and 74th amendment। सो क्लास, all states have now passed legislation to implement the provisions of the 73rd and 74th amendment। 1992 में लॉ बन चुका था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो चुका था, अमेंडमेंट्स हो चुकी थी, 73rd and 74th अमेंडमेंट्स हो चुकी थी। फाइनली 1993 में आपका जो ये इम्प्लीमेंटेशन है स्टार्ट हो चुका था। 73rd and 74th अमेंडमेंट जो प्रोविजंस लेकर आए कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे रिलेटेड इम्प्लीमेंटेशन जो है स्टार्ट हो गया। Now today there are more than 600 जिला पंचायत, about 6000 block or intermediary panchayats and 2,40,000 gram panchayats in rural India। If we talk about today's present day India, there are about 600 जिला पंचायत, 600 जिला पंचायत हैं। हमने 3 टायर स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है। क्या था, एट द टॉप जिला, एट द सेंटर इंटरमीडिएट और यू कैन से तालुका और मंडल और ब्लॉक लेवल, एंड एट द बॉटम इट इज ग्राम पंचायत। सो 600 आपके जिला पंचायत हैं, 6000 आपके ब्लॉक और इंटरमीडिएट पंचायत हैं, एंड अप्रोक्सीमेटली 2,40,000 आपके ग्राम पंचायत है रूरल इंडिया के। Over 100 city corporations, 1400 town municipalities and over 2000 nagar panchayats in urban India। There are about 100 city corporation or you can say municipal corporations are there,
1400 टाउन म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ सिटी एंड अ टाउन, अगेन ये जो डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन होती है, ठीक है। तो 1400 आपकी क्या है, टाउन म्यूनिसिपैलिटीज हो गई। फॉर एग्जांपल सिटी और टाउन का अगर डिफरेंस बताऊं, कोलकाता और दिल्ली और चेन्नई और यू कैन से बैंगलोर और मुंबई, दीज आर सिटीज, ठीक है। बट बीकानेर हो गया, ठीक है, बीकानेर, गांधीनगर, साबरमती, अहमदाबाद, ये सारे आपके क्या हो गए, टाउन्स हो गए। सो देर आर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 1400 टाउन municipalities and over 2000 नगर पंचायत इन अर्बन इंडिया। 2000 नगर पंचायत है और नगर पंचायत जो है हमारे इंडिया में आज की डेट में है। More than 32 lakh members are elected to these bodies every 5 years. Of these, at least 13 lakhs are women. I already told you, like 1/3 seats are reserved for the women in रूरल लोकल इन लोकल बॉडीज, ओके। लोकल गवर्नमेंट में आपकी 1/3 सीट्स जो है किसके लिए रिजर्व होती है, वुमेन के लिए होती है। हर 5 साल में अप्रोक्सीमेटली 32 लाख मेंबर्स जो होते हैं आपके रूरल लोकल बॉडीज और अर्बन लोकल बॉडीज में क्या होते हैं, इलेक्ट होते हैं। उसमें से एटलीस्ट जो 13 लाख जो मेंबर्स हैं या फिर वो क्या है, वुमेन हैं। So the 73rd and 74th amendments have created uniformity in the structures of the Panchayat Raj and Nagarpalika institutions across the country. So there is a uniformity, ठीक है। जो 73rd और 74th amendment है, they have created uniformity in the structures, ठीक है। हम देखते आ रहे हैं आज से, जब से डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, ये आपका 73rd 74th amendment इम्प्लीमेंट हुआ है, उस टाइम से आज तक हम देखते हैं इसमें इम्प्रूवमेंट होती जा रही है, ठीक है। एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट हो रही है इनके स्ट्रक्चर्स में, पंचायती राज स्ट्रक्चर में और नगर पालिका इंस्टीट्यूशंस में ऑल ओवर द कंट्री, ओके। सो इट क्रिएट एन एटमॉस्फेयर एंड प्लेटफॉर्म फॉर पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। सो लोकल गवर्नमेंट played a very significant role for people's participation in the government, because अब क्या हो रहा है लोकल गवर्नमेंट में, लोगों का स्पेशली पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में पीपल कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू द गवर्नमेंट, ठीक है। पंचायती राज पीपल क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली गवर्नमेंट से कनेक्ट हो रही है, तो लोगों का पार्टिसिपेशन भी इससे क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा जो है, ग्राम पंचायत का क्या होता है, एक पार्ट होता है। और ग्राम सभाओं में जितने भी आपके एडल्ट पॉपुलेशन है उस पर्टिकुलर विलेज के, वो सारे क्या होते हैं, मेंबर्स जो एलिजिबल है वोटिंग के लिए, जो जिसका वोटर्स आईडी कार्ड बना हुआ है, जो वोट करता है, ही और शी इज एलिजिबल फॉर बिकमिंग द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा। और ग्राम सभा जो है पंचायत से डायरेक्टली कनेक्ट होती है। सो दैट्स व्हाई these local bodies create an atmosphere and platform for people's participation in government more and more, ठीक है। तो ये जो इसके इम्प्लीमेंटेशन से काफी आप बोल सकते हो कि हमें डेमोक्रेसी में इसको बहुत ही अच्छा माना गया है, ठीक है। सो द प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन फॉर वुमेन एट द पंचायत एंड नगर पालिका हैज एंश्योर्ड द प्रेजेंस ऑफ अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वुमेन इन लोकल बॉडीज। नाउ सो यहाँ पे एक जो है इक्वालिटी हमें देखने को मिलती है और एक श्योरिटी मिलती है कि वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है एट लोकल लेवल्स वो होगा ही होगा, ठीक है। प्रेजेंस जो है काफी इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि एक वुमेन जो आपके, ठीक है, सम कंडीशंस आर देयर, ठीक है, जहाँ पे वुमेन ही वुमेन की कंडीशन को बहुत बेटर तरीके से समझ सकती है। तो वुमेन के पार्टिसिपेशन से, ठीक है, एक रिजर्वेशन है और उनके पार्टिसिपेशन से क्या हो रहा है, काफी जो सिचुएशंस है काफी इम्प्रूव हुई है, ठीक है। इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन द लोकल बॉडीज। So as this reservation is also applicable for the position of Sarpanch and Adhyaksh,
a large number of women elected representatives have come to occupy these positions. ठीक है, अब रिजर्वेशन हो चुकी है सरपंच के लिए, इवन फॉर अध्यक्ष के लिए भी, तो ज्यादा से ज्यादा जो वुमेन है आज क्या कर रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही है पॉलिटिकल सिनेरियोज में, पॉलिटिकली वो काफी एक्टिव हो रही है आज के डेट में। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं। राइट नाउ एट प्रेजेंट हमारे जो बीकानेर की भी जो आप बोल सकते हो कि जो मेयर है, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की हेड मेयर जो है वो क्या है, वुमेन है। ठीक है, वो रिजर्व्ड सीट थी कि वुमेन ही होनी चाहिए। ठीक है, तो वो वुमेन है। ठीक है, सो देयर आर एटलीस्ट, नाउ जस्ट लुक एट दिस बॉक्स, देयर आर एटलीस्ट 200 वुमेन अध्यक्ष इन जिला पंचायत। जिला पंचायत में 200 वुमेन जो है वो क्या है, अध्यक्ष है। 200 वुमेन अध्यक्ष इन जिला पंचायत, 2000 women who are presidents of the block or taluka panchayats, देखिए 10 it is the multiplied of 10। ठीक है, अध्यक्ष अगर 200 है तो ब्लॉक लेवल में 2000 है। मोर देन 80,000 वुमेन सरपंच इन ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में 80,000 से भी ज्यादा जो वुमेन है वो सरपंच हैं ग्राम पंचायत की। So we also have more than 30 women mayors in corporation। 30 women mayors हैं corporation में। 500 women अध्यक्ष है। टाउन म्यूनिसिपैलिटीज में क्या है, जो अध्यक्ष है उसमें 500 वुमेन जो है टाउन म्यूनिसिपैलिटी की अध्यक्ष रही है। 650 नगर पंचायत हेडेड बाय वुमेन। 650 नगर पंचायत जो है आज के प्रेजेंट डे में कौन हेड कर रहा है, वुमेन हेड कर रही है। Okay, so women have gained more power and confidence by asserting control over resources। Now जो confidence आप बोलोगे women में after the implementation of 73rd and 74th amendments, ठीक है, जो women के अंदर confidence काफी built up हुआ है। Now women are like they are taking steps, ठीक है, और रिसोर्सेज में उनका कंट्रोल आ चुका है। तो जो वायलेंस है वो भी काफी हद तक ड्यू टू दिस रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन कंपेयर टू लाइक प्रीवियस सिनेरियो, जो ये वायलेंस था वो भी काफी कम हुआ है। ठीक है, सो वुमेन हैव अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्किंग ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, they have brought a new perspective and a greater sensitivity to discuss at local bodies। ठीक है, बहुत नए नए पर्सपेक्टिव्स लेकर आएंगे हैं, क्योंकि आइडियाज भगवान ने सबको एक जैसा ही बनाया है। ठीक है, माइंड तो सबको यूनिक, वी ऑल आर लाइक यूनिक क्रिएचर्स। तो वुमेन के अंदर भी जो आइडियाज हैं, ठीक है, पहले वुमेन आ नहीं पाती थी, अब जैसे जैसे उनको मौका मिल रहा है, ठीक है, वो उनके पास रिसोर्सेज का कंट्रोल है, तो वो एक नए पर्सपेक्टिव के साथ आ रहे हैं, नए आइडियाज के साथ लेकर आ रही है। ठीक है, नए आइडियाज लेकर आ रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये कुछ आपके एडवांटेजेस हैं। ठीक है, नाउ जस्ट लुक एट द चैलेंजेस। ठीक है, स्पेशली फॉर द वुमेन एट द लोकल लेवल। जो लोकल लेवल लोकल लेवल पे जो वुमेन है क्या चैलेंजेस फेस कर रही हैं, या फिर हम बोल सकते हैं लोकल बॉडीज, लोकल गवर्नमेंट क्या चैलेंजेस फेस कर रही है। First of all, the women are unable to assert their presence or were mere proxies for the male members of their family who sponsored their election। So इस पॉइंट को समझाने के लिए I am giving you an example of a series called पंचायत। ठीक है, आई डोंट नो आपने देखी है नहीं देखी है, अगर नहीं देखी है कभी टाइम मिले तो देखना। पंचायत है, ज्यादा बड़ी सीरीज नहीं है। ठीक है, आई थिंक 5-6 एपिसोड्स हैं उसके, तो गो थ्रू दैट, कभी मौका मिले तो देखना। उसमें क्या होता है, पंचायत में जो एक्टर है एक्ट्रेस है नीना गुप्ता है, और साथ में जितेंद्र, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, जितेंद्र है, जीतू करके उसको बुलाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो सरपंच होती है वो वुमेन कैंडिडेट होनी चाहिए, बट हम देखते हैं उस सीरीज के अंदर कि जो मेन जितना भी हैंड ओवर है, जितना भी काम है, वो कौन कर रहा है, वो उसके हस्बैंड कर रहे हैं। ठीक है, वो जस्ट नेम के लिए क्या होती है वहां पे सरपंच बनी हुई है या अध्यक्ष बनी हुई है। ठीक है, उनकी प्रॉक्सीज लगती है। प्रॉक्सीज इज लाइक कि फेक अटेंडेंस लगती है।
right? So women are unable to assert their presence of a mere proxies for the male members of their family who sponsored their election. वो उनके इलेक्शन को स्पॉन्सर करते हैं और एक बार वो बन जाती हैं सरपंच या जो भी पोजीशन है, उसके बाद जो हैंडल है, ठीक है, जितना भी काम है वो कौन कर रहे हैं, कंट्रोल वो अपने हाथ में रखते हैं, मेल्स, ठीक है। So such instances however are becoming fewer, ठीक है, आज के टाइम पे कम हो रहे हैं comparatively, but फिर भी ये challenges हमें face करने को मिलते हैं। So while reservation for scheduled caste and tribes are mandated by the constitutional amendment, most states have also made a provision to reserve seats for backward castes, ठीक है। अब रिजर्वेशंस जो है शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए तो मैंडेटरी है, नेसेसरी है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट्स, बट सम स्टेट्स आल्सो मेड अ प्रोविजन टू रिजर्व सीट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लासेस के अकॉर्डिंग भी क्या कर रहे हैं, रिजर्वेशन कर रहे हैं। सो approximately इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इफ वी कैलकुलेट इट, एंड अप्रोक्सीमेटली 16.2% शेड्यूल कास्ट, ठीक है, 16.2% पॉपुलेशन किससे बिलोंग कर रही है, शेड्यूल कास्ट से। 8.2% पॉपुलेशन इज ऑफ शेड्यूल ट्राइब, एंड दोनों को मिला के जो है अबाउट 6.6 लाख इलेक्टेड मेंबर्स इन द अर्बन एंड लोकल बॉडीज, दोनों को मिला के 6.6 लाख इलेक्टेड मेंबर्स जो है अर्बन और लोकल बॉडीज में उनके लिए सीट्स रिजर्व हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सिग्निफिकेंटली ऑल्टर्ड द सोशल प्रोफाइल ऑफ लोकल बॉडीज। सो ये जो आपका लोकल बॉडीज का प्रोफाइल है, पहले हम आप सबको पता है कि इंडिया की वन ऑफ द चैलेंजेस of India, especially after independence, was bringing equality, ठीक है, काफी अनटचेबिलिटी काफी इंडिया में पहले होता था, आज के टाइम पे भी है बट उतना नहीं है, ठीक है। अनटचेबिलिटी था, कास्ट सिस्टम था, तो काफी प्रॉब्लम्स और काफी चैलेंजेस फेस करने को मिली, बट ड्यू टू दिस रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड वुमेन, it altered the social profile of local bodies की जो ये प्रोफाइल है, सोशली जो प्रोफाइल है, काफी चेंज कर दी, क्योंकि अब उनका अब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन आ चुका है, अब उनको शो तो करना ही पड़ेगा ना कि हाँ कि अब शेड्यूल कास्ट है तो शेड्यूल कास्ट के ही मेंबर को आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट करना पड़ेगा। इलेक्शन बॉडी जो है शेड्यूल कास्ट के मेंबर को ही नॉमिनेट करेगी, तो इसने जो है लोकल बॉडी का एक प्रोफाइल चेंज कर चुका है, इक्वालिटी आई है हमारे सोसाइटी में। These bodies have thus become more representative of the social reality they operated within. Obviously, अब पहले उनको रिप्रेजेंट ही नहीं किया जाता था, जो मेन प्रॉब्लम्स थी। अब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स में खुद रिप्रेजेंट है, तो वो अपनी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही है कि व्हाट इज द एक्चुअलिटी ऑफ सोसाइटी, जो सोशल रियलिटी है उसको क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको ऑपरेट कर रहे हैं कि हाउ वी कैन चेंज दिस सिनेरियो। ये जो टाबू सिस्टम्स हैं, ठीक है, कास्ट टाबू है, ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी ताबू है, या फिर और भी अलग अलग तरीके के जो ताबूस चल रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसको इम्प्रूव करने की काफी हद तक इम्प्रूव भी किया है, ठीक है। सो बट ऑब्वियसली प्रॉस है तो कॉन्स भी हैं और डिफिकल्टीज तो आएंगी ही। अगर हमें कोई भी चीज अगर हमें चेंज करनी है तो उसमें चैलेंज हमें फेस करना ही पड़ता है, ठीक है। अब अगर मैं एग्जांपल दूं, लास्ट ईयर का ही देती हूँ, जब कोविड आया था, पैंडेमिक आ गया था, एंड नाउ लाइक सब कुछ जो है यू कैन से कि उथल पुथल हो गया था, ठीक है। एजुकेशन सेक्टर, ठीक है, इकोनॉमी एकदम से हमारी खराब हो चुकी थी, ठीक है। इकोनॉमी में बहुत से बिजनेस लॉसेस हुए, काफी लोगों की हेल्थ इश्यूज काफी होने लग गए, मतलब यू कैन से कि सब कुछ चेंज हो गया था। तो जो एजुकेशन सेक्टर है स्पेशली स्कूल्स के लिए और छोटे बच्चों के लिए काफी चैलेंजिंग रहा, ठीक है, क्योंकि शिफ्ट एकदम से ऑनलाइन क्लास में शिफ्ट होना ये काफी हेडेक था, काफी चैलेंजिंग था। बट
somehow schools, educationalists and even especially students, उन्होंने काफी क्या किया, काफी कॉर्पोरेट किया, उस चैलेंज को फेस किया, and now somehow like we are able to manage these online classes, right? So obviously tensions भी create होती है, अगर हम कोई भी चेंज लाना चाहते हैं सोसाइटीज में तो चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं। तो कुछ चैलेंजेस क्या क्या हैं? चैलेंजेस फेस्ड बाय लोकल बॉडीज, जस्ट लुक एट दीज challenges. Local governments in India enjoyed limited autonomy to perform the functions assigned to them. Obviously जो मेन पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास है, स्टेट कितना फंड दे रहा है, कौन से सब्जेक्ट ट्रांसफर कर रहा है, काफी लिमिटेड ऑटोनॉमी है, ज्यादा इंडिपेंडेंस नहीं है, ठीक है? तो दे कैनॉट परफॉर्म देयर फंक्शंस लाइक fully, right? Many states have not transferred most of the subjects to the local bodies. Many states have not transferred. बहुत सारे states जो हैं most of the subjects, there are total 29 subjects, 29 subjects which state can transfer to the local bodies, but there are like very few states who are transferring these subjects, mostly all the subjects to the local bodies. Like for the sake of the name, they are like transferring subjects to the local bodies. Okay, so बहुत से ऐसे states है जो subjects जो हैं agriculture related, irrigation related, road related, libraries related, cultural activities के related, etc. बहुत से ऐसे few subjects हैं जो transfer करते हैं. Okay, so some people criticize the formation of the local bodies. Why? Because this has not changed the way in which decisions are taken at the central and state level. क्यों criticize करते हैं? Critics, there are critics. Why? Because उनका कहना है जो सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल पे जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं उसका तरीका जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है. दिस हैज नॉट चेंज्ड एट ऑल द वे इन व्हिच डिसीजंस आर टेकन एट द सेंट्रल एंड द स्टेट लेवल. ओके, दैट्स व्हाई some people criticize this formation of the local bodies. Okay, so people at the local level do not enjoy much powers of choosing welfare programs or allocation resource. Obviously जो main power है किसके पास है? Central और state level के पास है. They can like choose the welfare program. Central और state government ही क्या करती है? choose करती है कि कौन से welfare programs होने चाहिए, रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है, कौन से सब्जेक्ट ट्रांसफर करने हैं. तो ये सब से रिलेटेड लोकल लेवल पे बहुत ही कम ऑटोनॉमी है उनके, बहुत ही लाइक दे हैव लाइक एंजॉयड वेरी लिमिटेड ऑटोनॉमी. ओके, लोकल बॉडीज हैव वेरी लिटिल फंड्स ऑफ देयर ओन. ठीक है, उनको जो रेवेन्यूज मिलते हैं, टैक्सेस मिलते हैं, काफी कम मिलते हैं. ठीक है, बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ फंड होता है. While rural local bodies raise 0.24% of the total revenues collected, they account for 4% of the total expenditures made by the government. So they earn much less than they spend. That makes them dependent on those who give them grants. Okay, now local bodies जो है only 0.24% of the total revenues ही collect कर पाती है. उनके पास जो allocation है funds का या फिर revenues generate करने का only 2.24% ही वो कर पाती है. बट उनका जो total expenditure है, अगर हम overall देखें government expenditure में, तो total expenditure उनका 4% का है. राइट, तो उसमें मोस्टली देखो 2.24 तो वो जनरेट कर रहे हैं टैक्सेस से, रेवेन्यूज जनरेट हो रहे हैं, बट लाइक 3.70% जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर है वो किस पे डिपेंडेंट है? वो ग्रांट्स पे, कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनको ग्रांट्स देगी या स्टेट गवर्नमेंट उनको ग्रांट्स देगी, उस पे डिपेंडेंट है. तो ये कुछ चैलेंजेस हैं. ठीक है, so class, this is all about this chapter. We have done this chapter. Okay, we have like thoroughly gone through this chapter. So go through this chapter, and if you face any kind of problem, you may let me know. Okay, you may raise your query in our next class. We will talk about it. Okay, thank you so much. Bye bye, take care.